It's a great honor to be here, and I have had the privilege of interacting with civil servants during the mid-career professional courses, and this is my first time I'm interacted with senior members of the judiciary. So first, please know that it's a great honor for me, and excuse me if I'm not aware with the jargons that you are familiar with. Before I formally proceed, there are two assurances that I would like to give. First, I assure you it will not be a lecture. I haven't come here to deliver a lecture. I think given the stage of career that all of you are at, there is no need for a formal lecture. However, I promise you, I assure you, there are some new concepts and ideas that you will learn today. And the significance of those concepts is that they will give you a new perspective to not only look at the world, but to also approach the very concept of justice. What is right or wrong? How do we determine it? So this will challenge some of your preconceived notions and ideas that you have acquired over the years through your professional expertise as well as your academic knowledge. All I request you is to participate in this activity with an open mind. To the extent possible, block all the ideas that you have brought with yourself in this hall today. And try to participate in these activities with an open mind, with a clean slate. And I promise you that you will not only enjoy it, there are some concepts that you will learn today that will probably change the way you look at right or wrong. So that's all I have to say. And my first question is, so I'll walk here. My first question is, most of us come from very humble backgrounds, and most of us are self-starters. We make it, you have made it to this place despite the system. And people they are proud of their achievements, and they should be. Particularly when you achieve something despite the system, not because of the system. So my first question to you is, three volunteers, any three volunteers, what in your opinion is the single biggest achievement of your life so far? It can be anything, professional, personal, family, social, anything. Any volunteer? आपकी जिंदगी की आपके ख्याल में सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? जी. अच्छा, माशाल्लाह, commendable. Zabardast, wonderful. Ji, please. Simplicity is my achievement. That's all. Simplicity. And what do you mean by simplicity? Without neither boasting anything, neither proud of my career, neither proud of my achievement. This is all due to supreme power. Chale, Zabardast. That's all. Any last volunteer? जी प्लीज अपना नाम भी साथ बताते जाइए ताकि वी हैव ज़ियाउर रहमान सर. जी ज़िया साहब, मैं समझता हूँ कि मेरी अचीवमेंट अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करना, उस पे हज की अल्हम्दुलिल्लाह हज की सादत नसीब हुई, माँ की देरी ना ख्वाहिश. अच्छा, ज़बरदस्त, वेरी गुड, बिगेस्ट अचीवमेंट, माशाल्लाह. अच्छा, दीज आर ऑल ग्रेट अचीवमेंट्स, और इन जैसे सवालों का कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं होता. ये हर किसी की अपनी सब्जेक्टिव लाइफ है. बट देयर इज वन आंसर दैट यू विल रेयरली हेयर फ्रॉम पीपल.
which in my opinion is the key to navigating the complexities of life, وہ ہے ہم اس طرح کی اچیومنٹس کا اکثر ذکر کرتے ہیں پروفیشنل سینس میں کہ جی میں نے ٹاٹ کے اسکول سے شروع کیا, میں یہاں تک پہنچا. فیملی سینس میں نے والدین کی خدمت کی, میں نے فیملی کو ساتھ اٹھایا. یہاں پہ ایسے ایسے لوگ بیٹھے جنہوں نے سنگل ہینڈیڈلی سٹارٹ لیا لیکن انہوں نے اپنے پوری فیملی کو ساتھ آگے لے کے گئے. دیز آر آل اچیومنٹس. ایک اچیومنٹ جس کا کبھی ذکر نہیں کیا جاتا اور وہ آئی تھنک ان سب سے مشکل کام ہے, لگتے تو یہ بھی بڑے مشکل کام ہے, وہ ہے the ability to unlearn and relearn. unlearn کرنا اور relearn کرنا. جب آپ اس سماج میں گرو کرتے ہیں, سماج سے آپ ایکوائر کرتے ہیں, یہ جتنی نالج آپ کے پاس ہے موسٹ آف اٹ از سوشلی کنسٹرکٹیڈ, یعنی یہ سماج نے ایک کنسٹرکٹ کر کے آپ کے دماغ میں یہ باتیں ڈالی ہیں. جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں, جب آپ اپنے گاؤں میں تھے, اپنے اس فیملی میں تھے, جب یونیورسٹی کے لیے کسی بڑے شہر میں گئے, آپ کے بہت سارے وہ آئیڈیاز چیلنج ہوئے. جب آپ یونیورسٹی سے پروفیشنل لائف میں آئے, ابھی آپ جوڈیشری کا پارٹ نہیں بنے تھے, تو ایز وکیل آپ کا بینچ کے بارے میں بہت ساری آپ کے پری کنسیوڈ نوشنز تھی. جب آپ خود آئے یو ریئلائزڈ کہ اس میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ مس پلیسڈ انڈرسٹینڈنگ پہ ہے یا انیڈیکویٹ انڈرسٹینڈنگ آف دس سائڈ آف دا ٹیبل. یہ کیا ہے؟ یہ ان لرننگ اور ری لرننگ کا پروسیس ہے. اینڈ دس از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ ون کین ایور ڈو, کیونکہ جو باتیں آپ سیکھ لیتے ہیں, بٹھا لیتے ہیں, ان لرننگ اس لیے مشکل ہے کہ اٹس انٹلیکچولی ویری لیبوریس. یہ بڑا ٹاسکنگ کام ہے, آپ کو اپنے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے, اپنے خیالات میں سے نقص فالٹس آپ کو نکالنے ہوتے ہیں اور پھر آپ نے اس کو پوری صفائی کر کے ایک نئی چیز سیکھنی ہوتی ہے. اس لیے یہ تقریباً اٹس ویری فیشنیبل تھنگ ٹو سے, بٹ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کانسیپٹ. تو آج میری صرف کوشش یہ ہے کہ آج اگر آپ کچھ ان لرن کرے, کچھ ری لرن کرے, اینڈ اگر آپ میں سے کوئی بور ہو جائے, فیل فری, یو کین ٹیک اے بریک. وہ وداؤٹ کوئی آپ کو اس کے لیے فارمل اس کی ضرورت نہیں ہے اپروول کی. 2-3 سلائیڈز پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ادھر آپ کی اٹینشن چاہیے. اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی سے, کیونکہ اگر آپ یہ لیکچر خود آپ کو اٹریکٹ نہیں کر رہا تو وہ لیکچر کا قصور ہے, وہ آپ کا نہیں ہے, سلائیڈز کا قصور ہے. تو میں آج آپ کو ری لرن اور ان لرن کرنا چونکہ چیلنج ہے, ہم کیسے کریں گے. اب جہاں پہ اتنی ساری یہ دنیا ہے, آپ کبھی ایک تجربہ کریں, ہم سب نے کیا ہوگا, اگر تجربہ نہیں کیا, نیچرل تجربے ہمارے ساتھ ہوئے ہیں. جب آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں شہر میں, موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ٹریفک میں آپ کو گاڑی والے بڑے ظالم لگتے ہیں, بدتمیز لگتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں یہ گاڑی والے, ان کو لگتا ہے یہ روڈ ہی ان کا ہے سارا. جب آپ پیدل چلتے ہیں آپ کو موٹر سائیکل, گاڑی والے, ٹرک والے سارے برے لگتے ہیں. پھر جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں آپ کو سائیکل, موٹر سائیکل والے برے لگتے ہیں کہ ان کو دیکھیں یہ کیسے اوورٹیک, یہ کیسے کر رہے ہیں, ان کو تو تمیز ہی نہیں ہے ٹریفک کی. یہ کیا فنومنا ہے؟ اب ایک ہی وہی ایکٹر ہے. جب آپ باہر میں تھے آپ کی بینچ کے بارے میں پرسپشن الگ تھی, جب آپ خود بینچ میں آ گئے تو آپ بڑے کنسیڈریٹ ہو گئے ہیں, آپ اب ذرا حقیقت پسند ہو گئے ہیں. اب آپ باہر والوں کو لیکچر دیتے ہیں کہ اس طرح سے چیزیں نہیں ہوتی, آپ تھوڑا سمجھا کریں. ہم ایک کانسٹرینٹ میں آپریٹ کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ پہلا چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ سوشل ریالٹی بڑی کمپلیکس چیز ہے. دوسری, اور یہ پہلی بات اگر آپ یہاں سے آج رٹا لگا کے جانا ہے, ایک بات کہ کوئی یونیورسل ٹروتھ جیسی ریالٹیز نہیں ہوتی, یہ سوشلی کنسٹرکٹڈ ہے. آپ کا نام؟ یاسین صاحب کا, قادری صاحب کا جو ٹروتھ ہے وہ ان کے لیے فالس ہو سکتا ہے ایز فار ایز سوشل ریالٹیز کنسرن, جو سماج کی ریالٹیز ہیں. سو پہلی چیز آپ نے یہ سیکھنی ہے کہ کوئی ایبسلیوٹ ٹروتھ نہیں ہے سماجی ریالٹیز میں. جس طرح سے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے گاڑی والا آپ کو غلط لگتا تھا,
گاڑی میں آ کے موٹر سائیکل والا غلط لگتا ہے, بار میں بیٹھ کے بینچ آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں, بینچ میں بیٹھ کر آپ کو لگتا ہے کہ بار والے بڑے ان ریئلسٹک ہیں. ان میں سے کسی بھی پوزیشن پہ آپ غلط نہیں تھے. It just indicates the complexity of social reality and the fact کہ social reality کوئی black and white میں چیز نہیں ہے, یہ اتنی ہی کمپلیکس ہے. تو پہلی آپ نے یہ بات رٹا لگانی ہے کہ there are no universal absolute truths نہیں ہے social reality میں, کہ یہی حق بات ہے جو میں سمجھتا ہوں. اب جب absolute truths نہیں ہے اور reality socially constructed ہے, so the challenge is ہم کیسے تمیز کریں صحیح غلط کا. کیونکہ آپ کے لیے تو خاص طور پر اس کا مطلب کل جب آپ بینچ سے اس سائڈ پہ آ جائیں دوبارہ, ہو سکتا ہے بہت سارے جو آپ نے فیصلے کیے تھے آپ کو لگنا شروع ہو جائے کہ آپ نے تو غلط کیا تھا. سو ہاؤ ڈو وی ڈسٹنگوش, اتنی کمپلیکس سوشل ریالٹی میں پھر ہم غلط صحیح کا تمیز کیسے کریں گے. اس کے لیے among the others یہ صرف لیگل نالج پہ یہ فیصلے نہیں ہوں گے. اور آج میں آپ کو یہ نہیں پڑھا, لیگل نالج میں آپ کو نہیں پڑھانا ہے, وہ آپ سے ہم نے سیکھنا ہے. میں صرف آپ کو سوشل ریالٹی کی کمپلیکسٹی بتانے آیا ہوں اور یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ فیصلے صرف لیگل ریزننگ پہ کرتے ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں. اور بہت سارے فیکٹرز ہیں شعوری لاشعوری طور پر جو آپ کے ایکشنز, آپ کے سوچ کا تعین کرتے ہیں. سو the key to managing it is کہ آپ ان پروسیسز کو as long as you are aware of them اور ان کو بہتر مینج کریں, the risks of you making unfair decisions will be minimized. ختم تو نہیں ہوں گے, minimize ہوں گے. تو جب کمپلیکس ریالٹی ہے, ایبسلیوٹ ٹروتھ نہیں ہے, کرنا کیا ہے, اس کو مینج کرنے کے لیے دو کیز ہے. پہلا آپ کو اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا اور مینج کرنا ہوگا. سمجھنا اینڈ مینج کرنا. سو انڈرسٹینڈنگ اینڈ ریگولیشن. دوسرا انڈرسٹینڈنگ دی انوائرمنٹ اراؤنڈ یور سیلف اینڈ ریگولیٹنگ اٹ. یہ دو آپ یاد رکھیں. آپ یہ کیسے کریں گے اس کی طرف جاتے ہیں, لیکن اس میں یاد رکھیں دونوں میں کی پارٹ ہے ان لرننگ. جب تک آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں ہو سکتا ہے غلط بھی سیکھی ہے, اور ایز آئی سیڈ غلط نہیں, سوشل ریالٹی ہے اتنی کمپلیکس کہ اس کا وہ ٹپ آف دی آئس برگ آپ نے دیکھا ہے, باقی آپ نے دیکھا ہی نہیں تھا, اور آپ وہ ٹپ آف دی آئس برگ کو ہی الٹیمیٹ ٹروتھ سمجھنے لگے. یہ کیسے, اس پہ آئیں گے. سو یہ جو پروسیس ہے جس میں آپ دس پروسیس آف انڈرسٹینڈنگ یور سیلف, انڈرسٹینڈنگ یور اسٹرینتھس اینڈ لمیٹیشنس اینڈ ریگولیٹنگ دیم, نمبر 1. نمبر 2, understanding the environment around yourself and managing it, regulating it. اس کو emotional intelligence کہتے ہیں. This is emotional intelligence. Emotional intelligence is the process of managing and regulating yourself and the environment around you. تاکہ آپ جذبات میں آپ اپنے بائسز کے بنیاد پہ غلط صحیح کا تعین نہ کریں, بلکہ to the extent possible آپ fair اور balanced approach لے سکیں. تو اس کا پہلا پارٹ ہے سیلف اویئرنس. سیلف اویئرنس دو سینس میں ہے. سو ون از اے فلاسفیکل, دی ادر از سائیکولوجیکل. سائیکولوجیکل پہ میں نہیں جاؤں گا, سائیکولوجیکل بڑا آسان ہے. سائیکولوجیکل کانسیپٹ آف سیلف اویئرنس از کہ یو انڈرسٹینڈ یور سیلف, کہ آپ کی اسٹرینتھس لمیٹیشنز کیا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جینیٹیکلی دے آر پری ڈسپوزڈ کہ وہ شارٹ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں. کچھ لوگ مزاجن ذرا کول کام ہوتے ہیں. اب سیلف اویئرنس کا پارٹ یہ کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو ذرا جلدی غصہ آتا ہے, ہمارے ہاں لوگ ہوتے ہیں نا کہ جوانی میں جو مزاج تھا بڑھاپے تک وہی رہتا ہے. دس از ناٹ سیلف اویئرنس. سو اف یو انڈرسٹینڈ, یو ریئلائز دیٹ یو آر پرون ٹو اوور ریئیکٹنگ ان سرٹن سرکمسٹانسز, یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. تو یہ سیلف اویئرنس ہے. دا نیکسٹ پارٹ از سیلف ریگولیشن. لیکن آئی ول ڈرا اپون دی فلاسفیکل کانسیپٹ آف سیلف اویئرنس. سو آج جو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ سلائڈس میں کہوں گا کہ یہ رٹا لگا کے جائیں. سو پہلا پریویلیج. آئی ایشور یو اگر آپ پریویلیج کے کانسیپٹ کو سمجھے, اور ابھی ہم بحث شروع کریں گے, یہ دنیا کو دیکھنے کا آپ کو نیا اینگل دے گا.
So what is privilege? Privilege is unearned benefit. वो तमाम फायदे और मराहत जो आपको मिले हैं लेकिन उनको पाने में आपका कोई कमाल नहीं है. So privilege is all those unearned advantages that you have earned, you have received over the years, लेकिन वो आप उनको अर्न करने में आपका कोई कमाल नहीं है. You just got them by chance. मैं आपको मिसाल देता हूं. डीजी साहब तशरीफ फरमा चुके हैं. आप हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, डीजी साहब अनाउंस कर देते हैं कि आप में से इस 1 वीक या जितना टेन्योर है इस कोर्स का, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उनको ये चीफ जस्टिस साहब के हाथों एक स्पेशल सेरेमनी में अवार्ड देंगे एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग सेशन, और उसके वो कुछ पैरामीटर्स सेट कर देते हैं. ठीक, आप में से कुछ लोग इसको सीरियस लेंगे, कुछ लोग शायद कहेंगे कि चले अब हम कैरियर और उम्र के उस हिस्से में कि ये चीजें हमें ज्यादा अपील नहीं करती. फिर डीजी साहब जरा स्टेक्स बढ़ा देते हैं. डीजी साहब कहते हैं कि आप में से इस 1 वीक कोर्स में से जो जो ये टारगेट्स अचीव करेगा उनको एलिवेट किया जाएगा टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. ये आपको चीफ जस्टिस से कमिटमेंट भी ला के देते हैं. फिर आप में से आई एम अज्यूमिंग मोर देन 90% लोग जरा प्रोएक्टिवली उन टारगेट्स को परसू करना शुरू करेंगे. राइट और रॉन्ग? यहां तक तो मैं ठीक अज्यूम कर रहा हूं. अब सवाल आपके लिए. लेट्स अज्यूम डीजी साहब ने एक तरफा अनाउंसमेंट एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन कर दिया कि आप में से जो लोग केपी से है वो टारगेट्स अचीव करे या ना करे, ऑटोमेटिकली उनको एलिवेट किया जाएगा. बाकी जो है वो मेहनत करें. तो हाउ विल यू रिएक्ट टू दिस? चले डीजी साहब नहीं, मैंने किया है. मैं मिसाल आपको कह देता हूं. आप में से पहले तो ये बताएं, अगर इस तरह की कोई अनाउंसमेंट आती है, मैं चूंकि वो केपी से जानबूझ के उनको इल्जाम लगा रहा हूं, लेट्स से मैंने किया, किसी ने किया कि जी जो पंजाब से है सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, जो एक मखसूस ज़बान बोलते हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, इस तरह का कोई भी डिसीजन हो, तो आप में से मेजॉरिटी लोग का क्या रिएक्शन होगा? डिसअप्रूवल, प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट होगा. मुझे 3 वॉलंटियर्स चाहिए कि इसमें मसला क्या है, गलत क्या है जी? आप बताएं जफर साहब. इसमें इनजस्टिस है, डिस्क्रिमिनेशन है. नहीं, डिस्क्रिमिनेशन कैसे? मतलब इक्वलिटी नहीं है. अच्छा, इक्वल बिफोर द लॉ नहीं है. दोनों इक्वालिटी बिफोर द लॉ नहीं. आप अभी लॉ की जबान बोल रहे हैं. ठीक है. इसके अलावा कोई रीजन, इसके अलावा कोई रीजन जिसकी बुनियाद पे आपको लगता है कि ये अगर इस तरह होता है गलत होगा? अगेंस्ट द मेरिट है, मेरिट के अगेंस्ट है. हाँ, मेरिट. आपका नाम? अब आपने मजे की बात की, मेरिट. तो खाकवानी साहब, फिर मेरिट क्या है? कोई बता सकता है व्हाट इज मेरिट? ये इन्होंने आप ये असल आप आ रहे हैं मजे. फैजुल हसन साहब, व्हाट इज मेरिट? यकसा मौके देना सबको. अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप एक टांग से माजूर आदमी और एक सेहतमंद आदमी को 100 मीटर रेस में दोनों को खड़ा करके ये यकसा मौका होगा? विल इट बी मेरिट? ये सर असल इस तरह होता है, समराइज करके. हाँ. इक्वल अमंग द इक्वल्स. अच्छा, इक्वल अमंग द इक्वल्स. ठीक. अच्छा, तो फिर आपका नाम? राणा साहब कह रहे हैं कि सेम, यानी ऑरेंज की कंपैरिजन विद ऑरेंज, एप्पल विद एप्पल, सेम ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक. अब फिर मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर ये मेरिट का पैरामीटर है, तो आप लोग जो इधर बैठे हैं, आप में से आप एक कंपेटिटिव प्रोसेस के तहत इंडक्ट हुए हैं. जी. तो जब आप कंपेटिटिव प्रोसेस के तहत इंडक्ट हुए हैं,
آپ تو سیم گروپ کی کمپٹیشن آپ کا نہیں تھا. آپ میں ایل جی ایس پرائیویٹ ایلیٹ سکولز کے فارغ التحصیل, پرائیویٹ یونیورسٹیز کے فارغ التحصیل, اور بسیمہ کے پرائمری سکول, خزدار کے پرائمری سکول, رحیم یار خان کے سرکاری سکولوں کے طلبہ ایک ساتھ کمپیٹ کر رہے تھے. تو یہ تو اورنج اور ایپل کا کمپٹیشن ہے. ہاؤ از دس میرٹ؟ جی سر, اس طرح ہے, وہ جو بیسک ڈگری چاہیے یا بیسک کوالیفیکیشن جو چاہیے وہ سب کی ایک ہی ہے, لا گریجویٹ ہونا اور اس کے بعد کمپٹیٹیو ایگزام پاس کرنا. اس کے بعد اس سٹیج تک نیچے کسی کا سوشل بیک گراؤنڈ کیا تھا یا کیا نہیں تھا, دیٹ از ناٹ ریلیونٹ اوور ہیئر. جی, اس کے نہیں, بعد یہ تو آپ لا بتا رہے ہیں. جی میں اب پوچھ رہا ہوں کہ از اٹ فیئر بائی یور ڈیفینیشن آف میرٹ؟ سر, اسٹرکٹلی اسپیکنگ تو نہیں ہوگا. چلے, زبردست, گڈ. اب میرا آپ سب سے میں 4-5 سوالات کروں گا, آپ اپنے پاس یس اور نو لکھیں. جس کے سب یس آ جائیں وہ مجھے, ان سے میں پوچھوں گا. آپ میں سے وہ لوگ جن کے دونوں پیرنٹس 16 years آف ایجوکیشن اور ابو کی کوالیفیکیشن رکھتے ہیں, سمپل یس اور نو میں کریں. آپ میں سے وہ لوگ جن کی تمام سکولنگ مین پرائمری, سیکنڈری, ہائر سیکنڈری پرائیویٹ سکولوں میں ہوئی ہے, یس اور نو. آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے انڈر گریڈ یعنی یونیورسٹی ایجوکیشن کسی پرائیویٹ یونیورسٹی سے کی ہے. آپ میں سے جس نے بھی یونیورسٹی ایجوکیشن پرائیویٹ سے کی ہے تو وہ یس اور نو اپنے آپ کو دیں. آپ میں سے وہ لوگ جو تمام زندگی کسی شہر میں پلے بڑھے ہیں, یس اور نو. آپ میں سے وہ لوگ جن کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک گریڈ 20 اور اباؤ کی سرکاری ملازمت رکھتے تھے, کوئی ایک بھی پیرنٹ. یہ میں نے کچھ سوالات پوچھے, ایک آخر بھی پوچھوں گا. مرد حضرات سارے اپنے آپ کو یس کریں. آپ میں سے اکثریت میل ہے, 2 فیمیلز ہیں. اب یہ جو میں نے آپ سے 6-7 سوالات پوچھے ہیں, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے اکثریت یہ جو پرائیویٹ سکولوں والے سوالات تھے, پرائیویٹ ان کے جوابات ہے اور پیرنٹس بھی تھے, کوئی ہے ایسے لوگ؟ اچھا, اچھا, گڈ, زبردست. سارے جی پلیز. 2 نو, 3 یس ہے. اچھا, ماشاءاللہ. اچھا, گڈ. اب چونکہ ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے, میرے پاس بڑی اچھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس کے لیے, لیکن میں ویسے ہی سے آپ کو ایک ٹیزر, ایک فیلر دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ جو میں نے آپ سے چند سوالات پوچھے, ابھی اور بھی سوالات ہیں. سنی مسلمان ہونا اس پاکستان کے کانٹیکس میں, چونکہ ہم میجورٹی ہے, لاہور, کراچی, پشاور, اسلام آباد, ملتان, فیصل آباد جیسے بڑے شہر میں تعلیم حاصل کرنا, یا ویسے وہاں پہ رہنا, the very fact that you are living there is also a privilege. These are all those privileges that you got by chance. You had absolutely nothing, no contribution in getting these privileges. جب آپ شہر میں پلتے بڑھتے ہیں, جب آپ پڑھے لکھے ماں باپ کے ہاں پیدا ہوتے ہیں, جب آپ امیر ماں باپ کے ہاں پیدا ہوتے ہیں, وہ آپ کی زندگی کا ایک ٹریجیکٹری سیٹ کرتا ہے اور آپ کو سرٹن ایڈوانٹیجز ملتے ہیں جن کو پانے میں آپ کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. Now the problem is you end up thinking کہ یہ ساری میرٹ پہ آپ کی اپنی محنت تھی. اپنی محنت تو نہیں ہے. اپنی محنت تو تب ہوتی جو جس طرح رانا صاحب نے کہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکویلٹی بیفور لا سیم کیٹیگری میں مقابلہ آپ کو چاہیے تھا, آپ نے زندگی کا جو ریس ہے وہ آپ نے سیم سٹارٹنگ لائن سے سٹارٹ نہیں کیا ہے. جی, کہ بہت سارے لوگ جو سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں, میں نے اب تک جتنی زندگی
جگہوں سے آئے تھے جہاں ان کے پاس یہ ساری پریولیجز نہیں تھی جن کا آپ نے ذکر فرمایا. تو میں نے میجورٹی کو دیکھا کہ کیا ہے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرا جو استاد تھا جو میرا سینئر تھا میں ان کو ہمیشہ کہتا تھا کہ جب چراغ کرے اندھیرا جی ایک بار جو میں آپ کو نمبر بتا سکتا ہوں کہ اب جو سپریم کورٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہائی کورٹ میں تو نمبر آف پرسنس بن گیا مگر ان کے اپنے گھر میں کچھ دیکھنے میں. لیکن ایک بات یاد رکھے قادری صاحب, یہ پریویلیج جو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹائپ آف پریویلیج کیا ہے. یہ اتنا انٹرنچڈ اور انڈیورنگ ہے کہ پریویلیج برقرار رہتا ہے. وہ آپ کی طرح وہ جوڈیشری میں آنا ہی نہیں چاہتے, یہ نہیں کہ وہ آ نہیں سکتے سارے, لیکن وہ جو اس کا کلاس سٹیٹس ہے وہ برقرار رہے گا. باقی کیچ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن دیکھیں یہ اتنی ان ایکویلٹی اسی لیے کم ہونے کی وجہ بڑھتی ہے, بڑھ رہی ہے اس نظام میں, کہ وہ اتنا انٹرنچڈ ہے, وہ سورس آف پریویلیج وہ یا پاور ہے یا دولت ہے, آپ کا کلاس سٹیٹس ہے, وہ سٹیٹس بائی اینڈ لارج انٹیکٹ رہتے ہیں. خیر وہ ایک الگ بحث ہے, بٹ دس از پوائنٹ از ویل ٹیکن. سو پہلا پریویلیج آپ نے زندگی میں یا آپ کے دوستوں نے بہت سارے ایسے مراعات لیے ہیں, پرائیویٹ سکول جانا, پرائیویٹ یونیورسٹی, پڑھے لکھے پیرنٹس کے ہاں آپ کی پرورش, بڑے شہر میں آپ کی پرورش, یہ وہ پریویلیجز ہے جو جن کو پانے میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, لیکن آپ زندگی کے جس سٹیج تک پہنچے انہی سہاروں کے تھرو پہنچے ہیں. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نیکسٹ ٹائم میرٹ کی بات کرتے ہیں, آپ کوٹا سسٹم پہ ججمنٹ دیتے ہیں, آپ میٹرو بس پہ ججمنٹ دیتے ہیں, مائنڈ میں رکھیں کہ جس کو آپ میرٹ سمجھتے ہیں, جو لیگل کانسیپٹ آف میرٹ, وہ نیسیسریلی جسٹ اور فیئر نہیں ہوتا. میرٹ لیگل ٹرم سے بیونڈ ہے. میرٹ تب ہوتا جب زندگی کے ریس میں جس طرح ایک ٹانگ سے معذور آدمی اور ایک صحت مند آدمی کو آپ سیم 100 میٹر ریس میں نہیں ساتھ دوڑا سکتے, سیم کیٹیگری, اسی طرح میرٹ کا تقاضا یہ ہے کہ اگر جوڈیشری کے کمپیٹیٹیو ایگزامز میں ہے تو یہ تو انفیئر ہے کہ آپ ایل جی ایس اسکول والے جس کے دونوں پیرنٹس پڑھے لکھے, جس کے گھر میں لیپ ٹاپ کمپیوٹر, بچپن سے ٹیوٹر, اور ایک پرائمری سرکاری اسکول میں پڑھنے والا, دونوں ایک ہی ایگزام دے رہے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی. اب اس طرح کے جب آگے میں آپ سے یہ ذرا ایکسپلور کرنا شروع کروں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بہت ساری باتیں جو ہے جو آپ کے ذہن میں ہے. اچھا, سو پہلا نو یو اینڈ انڈرسٹینڈ یور پریویلیج. سیلف اویئرنیس, نوئنگ یور سیلف کا پہلا پارٹ ہے اپنے پریویلیج کا پتہ لگائے. پاکستان میں بھائی بڑا سمپل رول آف تھمب ہے, مرد ہونا, بڑے شہر کا ہونا, کوئی مائنڈ نہ کرے لیکن میں آپ کو جیوگرافیکل ٹرمز میں, اگر آپ پنجاب میں پلے بڑے ہیں موسٹ لائکلی یہ اٹس آلسو اے پریویلیج. یہ وہ پریویلیجز ہے, یہ تو پکے پریویلیجز ہیں. میں یہ بات آگے بڑھاؤں کہ اس سے یہ تو آپ فرما رہے ہیں نا, اس کے اگر اسے ہم اور بیونڈ دیکھیں, انسان ہونا خود پریویلیج ہے. وہ تو ہم سب چونکہ انسان ہے تو اور پھر یہاں سب ہوئے برابر جو صحت ہے, سانس لینا, اٹس اے ویری جو ایک ہم بیسک چیز کر رہے ہیں, یہی سب سے بڑا پریویلیج ہے کہ ہم آرام سے سانس لے رہے ہیں. اور نہیں دیکھیں آپ آ گئے نعمتوں پہ, میں وہ چیزیں کاؤنٹ کرا رہا ہوں, یہ تو سب پہ برابر اپلائی ہے. سانس تو ندیم صاحب بھی اتنی لے سکتے ہیں جتنی آپ لے سکتے ہیں. نہیں بیمار پھر وہ کوئی اور قصور ہے, اللہ تعالیٰ نے تو سب کو وہ برابر دیے ہوئے ہیں. میں ان فیکٹرز کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے درمیان برابر نہیں ہے, تو وہ پریویلیج ہے. سانس لینے یا نہ لینے سے آپ کا یہاں تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں آئی ہے, یعنی یہاں تک پہنچنے, ناٹ ان فزیکل سینس, ان کیریئر سینس. تو میں آپ کے درمیان جو سوشو اکنامک ڈس ایڈوانٹیجز ہے, ایکولائزرز کیا ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں. اچھا, سو پہلا انڈرسٹینڈ. دوسرا پریویلیج کیا کرتا ہے, یہ آپ کے لیے لرننگ والی پارٹ ہے. میں آپ کو شرط لگاتا ہوں 80% جو آپ کا کسی بھی پبلک پالیسی ایشو پہ موقف ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا میرٹ بیسڈ ایک موقف ہے, آپ تھوڑا سا اسکریچ کریں گے نا, آپ کا پریویلیج بول رہا ہے, جس کا جو بھی پریویلیج ہے.
آپ میرٹ کوئی نہیں بول رہے. یو ڈونٹ ریئلائز, بٹ آپ کا مثال کے طور پر جب اسلام آباد, لاہور, پشاور جیسے شہر میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بن رہا ہے اور ایک ڈی ایچ اے والا جس نے کبھی پبلک ٹرانسپورٹ نے یوز کی ہے نہ اس کو ضرورت ہے, وہ اس کو الٹے سیدھے نام پکار کے کرٹیسائز کرتا ہے, وہ آرگومنٹ یہ نہیں دیتا کہ میں, اس کو پتہ بھی نہیں, یہ لاشعوری بات ہے, وہ آرگومنٹ دیتا ہے کہ جی آپ پبلک ریسورسز, لمیٹڈ پبلک ریسورسز کا اس طرح بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. آرگومنٹ تو وہ یہی دیتے ہیں, لیکن ڈیپ ڈاؤن آپ تھوڑا سا اسکریچ کریں, وہ اس کا ڈی ایچ اے یا رچ پریویلیج بول رہا ہے, کیونکہ اس نے نہ تو کبھی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کیا ہے, نہ اس نے کبھی وہ ویگنوں میں سفر کیا ہے, نہ آئندہ کبھی ارادہ ہے. تو دے کین ناٹ ایون ریئلائز کہ یہ غریب آدمیوں کے لیے کتنی بڑی فیسلٹی اور سپورٹ ہے. اچھا, اب جب آپ کوٹا سسٹم کی بات کرتے ہیں, کوٹا سسٹم کے خلاف بات کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرٹ پہ بات کر رہے ہیں. میرٹ پہ آپ بات نہیں کر رہے ہیں. آپ کا جو بھی پریویلیج ہے, آپ آلریڈی اس سسٹم کے مرات یافتہ ہے, اس پریویلیجڈ بیس سسٹم کے, تو وہ لاشعوری طور پر آپ کا وہ پریویلیج بول رہا ہوتا ہے. سو مائنڈ یو, اچھا آپ بطور مردوں کے جب خواتین کے کسی ایشو پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, اگین آپ کو لگ یہی رہا ہوتا ہے کہ آپ تو بڑے نیوٹرل ہو کے, نیوٹرل کچھ نہیں ہوتا. نیوٹرلٹی از اے myth, there is no neutrality. سماجی سیاسی موضوع پہ آپ میں سے کوئی ادھر جو مرضی ویلیو اپنی طرف سے ویلیو نیوٹرل سٹیٹمنٹ دے دے, میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس میں آپ کا بائس کیا ہے, کوئی نیوٹرلٹی نہیں ہے. اور بائسز کی مزیدار اور ٹرکی بات یہی ہے کہ یہ لاشعوری ہے. یو ڈونٹ ریئلائز دیم. آپ ایسا نہیں کہ آپ جان بوجھ کے میں اور آپ کرتے ہیں, ہمیں احساس نہیں ہوتا ان کا. اب خیر ہم آگے بڑھتے ہیں. پریویلیج کن لائنز پہ ملتے ہیں؟ کلاس سٹیٹس میں نے آپ کو بتا دیا, آپ سب جانتے ہیں. جینڈر, ایبلٹی. ایبلٹی سے مراد دو قسم کی ایبلٹی ہے. ایک آپ کی فزیکل ایبلٹی, ڈس ایبلٹی, جس طرح میں نے کہا جینڈر آئیڈینٹی, ریس, ایجوکیشن, ریلیجن, یہ سارے پریویلیج یا لیک آف پریویلیج کے سورسز ہیں, اور ان میں سے ہم سب کسی نہ کسی کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں پریویلیج ویژول, دس از ہاؤ اٹ وڈ لک لائک. پہلے یہ لیفٹ والے کارٹون پہ ذرا دیکھیں, یہ وہی اس کا پاکستانی اگزامپل, وہ ڈی ایچ اے والا جو میٹرو بس پہ تنقید کرتا ہے اور کہ یہ ایک رچ اربنائٹ کڈ ان مزدوروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بار بار کمپلین کر رہے ہیں, دیکھیں میں نے بھی تو بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. اور یہ خواتین کا بڑا ایزی, اکثر ہم مرد خواتین کو ریئیکشنری رسپانس دیتے ہیں کہ آپ تو ہر وقت گلے ہی کرتے رہتے ہیں, دیکھیں آپ کے لیے تو اتنے مواقع ہیں. بیسیکلی وہ مواقع یہ ہیں, سٹارٹنگ لائن سیم, اینڈ لائن سیم, بیچ میں ان کو خاردار تاروں, یہ ہرڈل سے گزر کے پہنچنا ہے, ہم نے سیدھا سیدھا پہنچنا ہے. مائی وائف, میں اپنا مثال دیتا ہوں, آپ سے کیوں میں مثال سٹارٹ کروں. مائی وائف از اے ڈاکٹر, اور میں اپنے آپ کو ذرا ریلیٹیولی کم کنزرویٹو بھی دعویٰ کرتا ہوں, لیکن میری یہ حالت ہے تو باقی سماج, تو وہ بھی جاب پہ جاتی ہے صبح 8 بجے سے, بلکہ لیٹ می سے میرے خیال سے پاکستان میں جو ٹھیک سے کام کرتے ہیں ان لوگوں میں سے سب سے سخت ڈیوٹیز ڈاکٹرز کی ہوتی ہے. صبح 8 بجے جاتی ہے, شام کو مہینے میں 10 دن اس کی نائٹ ڈیوٹیز ہے, رات 8 بجے سے صبح 8 بجے تک. پھر اس کے بعد کچھ دن وہ لیبر روم پتہ نہیں کچھ ہوتا ہے 8 سے 5 بجے تک, پھر 2 بجے سے 8 بجے تک. سو ویری ٹف روٹین. وہ اس روٹین میں ہمارے بچوں کا بھی وہی خیال رکھتی ہے. صبح جاتے ہوئے میرے دفتر کے جانے سے پہلے میرا ناشتہ بھی تیار کر کے دیتی ہے. I don't contribute to any of these tasks. اچھا, جب ہاؤس وائف ہوتے ہیں پھر تو ہمارا بہانہ ہوتا ہے ایک لیجیٹیمیٹ کہ جی میں کما کے لا رہا ہوں, آپ تو گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں, تو کیا بات ہے. میرے کیس میں تو ہم دونوں we are working professionals. لیکن why is it کہ the moment we enter the door جتنی responsibilities ہے اس کا برڈن ان پہ ہے. اچھا, یہ سب کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا ایف سی پی ایس پارٹ 2 بھی کلیئر کرنا ہے,
प्रोफेशनल अचीवमेंट्स भी साथ साथ जारी रखनी है। तो ये मजाक नहीं है फॉर विमेन। आपको पता है खवातीन के लिए पाकिस्तान में सबसे प्राइज्ड सॉट आफ्टर जॉब डॉक्टर बनना होता है। हम सब अपनी बेटियों के लिए पहली प्रेफरेंस बहनों के लिए ही रखते हैं। डू यू नो, आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई रेड दिस स्टैटिस्टिक, more than 60% of doctor graduates, female graduates, end up staying at home. यानी असल बात तो डॉक्टरी की सीट लेना मुश्किल होता है, वो करके MBBS करके उसके बाद शादी करने के बाद घर बैठ जाती। 60% से ज्यादा इस मुल्क में डॉक्टर ब्राइड्स उसको कहते हैं कि बस जब शादी हो गई। क्यों? क्योंकि फैमिली प्रेशर बच्चों का और उसका कि सब आपने करना है और वो दोनों साथ सस्टेन करना इतना मुश्किल होता है। अच्छा, साथ में ससुराल का ख्याल रखना है, वो सारे प्रोटोकॉल में भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब जो मर्जी हम मर्द हजरात कहें कि जी हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम तो बड़ा वो करते हैं। मैं जैसा बंदा जो अपने आप को बड़ा रिलेटिवली कम कंजर्वेटिव कहता है, इस हवाले से बड़ा मैं अपने आप को आज़ाद ख्याल भी कहता हूँ, मेरी ये हालत है, तो बाकी समाज की जो है रियलिटी आप खुद ही अंदाजा लगा। लेकिन स्टार्टिंग लाइन सेम है, वो सेम है। तो ये आप राणा साहब, ये वो आपने जो कहा ना कि ये वो नहीं है, लीगल जो मेरिट में नहीं आता ये। खैर, अब जब आपको समझ आ भी जाए कि किसी शेर आज के दौर में आप अगर DHA में रह रहे हैं, ये प्रिविलेज है। इस तरह की बहुत सारी, तो प्रिविलेज का होने में अब आपका कोई, अगर आपको पता चले कि आप प्रिविलेज रहे, ये कोई गुनाह नहीं है, इट्स ओके। लेकिन इससे लाखबर रहना जो है वो गुनाह है। अंडरस्टैंड इट, एक्नॉलेज इट। एक्नॉलेज के बाद दूसरा काम है, जब भी आप कोई ओपिनियन दे रहे हैं समाजी सियासी इशू पे, एक दफा अपने आप से सवाल जरूर पूछे कि ये आप बोल रहे हैं या आपका प्रिविलेज बोल रहा है। और प्रेफरेबली हर वो इशू जिसमें आप प्रिविलेज पोजीशन पे है, हमेशा रूल ऑफ थंब ये, ट्रस्ट द पर्सपेक्टिव ऑफ द अनप्रिविलेज्ड। प्रिविलेज्ड बंदा 10 में से 8 लोग उस मौजू पे सही बात कर ही नहीं सकते, प्रिविलेज जितना इंट्रेंच्ड होता है। आप इसकी मिसालें ले लें, कोटा सिस्टम, 80% हक में बोलने वाले बलोचिस्तान या रूरल सिंध के होंगे, 90% हक में बोलने वाले बाकी पाकिस्तान से होंगे। यानी ये जो इनकी जियोग्राफिकल डिवीजन होगी, ये इटसेल्फ शो करती है कि बेनिफिशरीज हक में बोल रहे हैं और जो नहीं। इसका मतलब कोई भी मेरिट पे बात तो नहीं कर रहा, जो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से सोच रहे हैं दोनों। तो प्रिविलेज को अंडरस्टैंड करना, और जब आप समाजी सियासी इश्यूज पे बात करें, प्रिविलेज चेक इसको मैं कहता हूं कि चेक योर स्टेटमेंट बिफोर यू एक्सप्रेस इट, कि आप बोल रहे हैं या आपका प्रिविलेज बोल रहा है। उसकी ये सेल्फ रेगुलेशन का पार्ट है। अब मैं जरा क्विकली आगे बढ़ता हूं। ये स्ट्रेटजीज है, ये छोड़ें, ये आपके लिए कोई इतनी आप जरा इंपॉर्टेंट, द फिलॉसफी ऑफ जस्टिस, नॉट द लीगैलिटी ऑफ जस्टिस। 4 दुनिया के तमाम फिलोसोफर्स ने अप्रोचेस दिए, 4 थेरीज है कि सही गलत का तायुन कैसे करेंगे। एक है यूटिलिटेरियन अप्रोच टू जस्टिस। मैं आपको सादा अल्फाज में समरी दे दूंगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूटिलिटेरियन अप्रोच टू जस्टिस क्या है कि गलत सही का तायुन कैसे करेंगे। इस अप्रोच में कि दी ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, हर वो पॉलिसी, हर वो एक्शन जिससे मुआशरे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशी मिले, वो जो है सही, दैट इज द राइट थिंग टू डू। सो ये क्वांटिफाइड नंबर्स की सेंस में जस्टिस का तायुन करता है कि जिससे ज्यादा लोगों को फलाह मिले और कम लोगों को तकलीफ हो। सो दिस इज वन अप्रोच टू जस्टिस। लिबर्टेरियंस वो लोग हैं कि रियासत, जुडिशरी, सरकार का ये काम ही नहीं है कि ये मुआशरे में लोगों को बताए कि गलत क्या है, सही क्या है। ये फ्री सोसाइटी है, आप छोड़ें लोगों को, दे आर एडल्ट्स थिंकिंग इंडिविजुअल्स, वो खुद तायुन करेंगे। और अगर कोई गलत चीज होगी, समाज ही उसको रिएक्शन देगा।
डिमांड एंड सप्लाई की बात है कि मार्केट में बहुत फाइनेंशियल सेंस में, समाजी सेंस में डिमांड एंड सप्लाई है। अगर गलत रवैया है वो समाज जो है उस पर रिएक्ट करेगा। सरकार कौन है, आप लोग कौन है जो आप तायुन कर रहे हैं कि गलत सही क्या है? अच्छा, अब ये जो हेट्रोसेक्सुअलिटी, गे मैरिज, बहुत सारी ये चीजें इस अप्रोच टू जस्टिस के तहत जस्टिफाई होती है कि भाई इंडिविजुअल राइट्स है और वो इंडिविजुअल राइट्स आप वायलेट नहीं कर सकते। आप कौन है जो आप गलत सही का तायुन करें? इंडिविजुअल थिंकिंग एडल्ट्स हैं, उनको लेट देम डिसाइड व्हाट इज राइट और रॉन्ग फॉर देम। और अगर वो गलत काम कर रहे हैं मुआशरे में, उनको लोग नहीं मिलेंगे सपोर्ट करने वाले, लेकिन आप ना इंटरफेयर करें। सो ये वो अप्रोच है लिबर्टी। इगैलिटेरियंस ये कहते हैं कि ये जो बात है कि जी इंडिविजुअल्स हैं, सरकार छोड़े, ये गलत बात है। स्टार्टिंग लाइन सबकी सेम नहीं है, इंडिविजुअल्स के सोचने और समझने की सलाहियत सबकी एक जैसी नहीं है। आप कैसे इन पे छोड़ सकते हैं? आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, स्टार्टिंग लाइन सबकी सेम नहीं है। कोई 100 मीटर रेस में 50 मीटर आगे खड़ा है, कोई 50 मीटर पीछे खड़ा है, टारगेट सेम है। तो आपको अफर्मेटिव एक्शन करना होगा। जो प्राइमरी स्कूल में रहीम यार खान, बसीमा या सिंध में कहीं पढ़ा है, उसको यहां तक पहुंचाने के लिए, एलजीएस के साथ कंपीट कराने के लिए आपको कोई कोटा, कोई अफर्मेटिव एक्शन करना होगा, तभी इन दोनों का चांस बराबर हो सकता है। सो ये इगैलिटेरियन अप्रोच है। अच्छा, अब दोबारा मैं आपकी तरफ आता हूं। ये बड़ा दिलचस्प है। अब आप सब, हैव यू एवर हर्ड ऑफ द ट्रॉली प्रॉब्लम? गुड, नहीं सुना, वेरी गुड। चलें, ट्रॉली प्रॉब्लम आप सब। अच्छा, अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम कि आप में से जो बोलना है, जिसने बोलना होगा वो हैंड रेज करेगा, चूंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक एक दफा नहीं बोला। सो आई वुड वांट कि हम नए उनको भी मौका दें। ये ट्रॉली आ रही है, ये रेल ट्रेन है ये। आप इसके ड्राइवर कह ले, मुझे नहीं पता रेल के ड्राइवर को क्या कहते हैं। स्टीयरिंग आपके हाथ में। किसी जंक्शन पे आप आते हैं, दो रास्ते हैं। एक रास्ते पे एक बंदा लेटा हुआ है, दूसरे रास्ते पे दूसरा बंदा लेटा हुआ है, दूसरे रास्ते पे 4 या 5 लोग लेटे हुए हैं। एज ए ड्राइवर ऑफ दिस ट्रेन आपके पास इख्तियार है कि आप, अच्छा अज्यूम करें कि ये दोनों जो लोग लेटे हुए हैं, ये हिल नहीं सकते, ये हट नहीं सकते, इनमें से किसी को मरना है। किसको मारना है, ये चॉइस आपके हाथ में है। अब आपने कोई ऑप्शन ना, ट्रेन रुक सकती है ना कुछ, ये अजम्पशंस है सारी, ठीक। इधर इन दोनों में से किसी रास्ते पे ट्रेन ले जानी है। कौन आप में से लोग, जस्ट रेज योर हैंड, जो एक आदमी को मारना पसंद करेंगे और इन 5 को बचाएंगे और ट्रेन को इधर डाइवर्ट करेंगे? कितने ऐसे लोग हैं? जस्ट रेज योर हैंड। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसका मतलब ऐसे लोग भी है जो इन 5 जो इस तरफ ट्रेन ले जाना चाहेंगे। वो कौन लोग है, जरा हाथ खड़े करें, बताइए जी, आप क्यों इस तरफ ले जाना चाहेंगे? एक मिनट काशिफ साहब, होल्ड योर थॉट। आप बहुत मजे की बात कर रहे हैं। जो लोग समझते हैं कि एक बंदे की तरफ ट्रेन जानी चाहिए, वो कौन लोग थे? आप सर बताएं जरा, क्यों? शिनवारी साहब कह रहे हैं, सो ही इज बेसिकली राइट नाउ अ यूटिलिटेरियन। दिस इज अ यूटिलिटेरियन अप्रोच टू जस्टिस कि 5 बंदों को मारने की बजाय एक बंदे को मारे तो समाज का तकलीफ कम होगा, 5 घर तबाह होने की बजाय। यही बात आप कर रहे हैं। अच्छा, गुड। अब आप जरा काशिफ साहब अपनी रीजनिंग बताएं। आप कह रहे हैं कि नहीं, आप 5 लोगों को मारे। ट्रेन का ट्रैक वो था, वो ट्रैक पे आके लेटे हुए, वो तो एक साइड था, तीनों का बंदा है पर एक साइड पे लेटा हुआ। ठीक है काशिफ साहब। आसिफ साहब जी, वहाँ पर जिधर एक लेटा हुआ है उधर बड़ा शार्प एज्ड टर्न है। अगर वो एक को मारने लगेगा, ट्रेन में बहुत सारे लोग मर जाएंगे। नहीं, अज्यूम करें वो रिस्क नहीं है, वो रिस्क नहीं है, वो रिस्क नहीं है।
बाकी ट्रेन को नुकसान नहीं होगा, ये आपको मैंने लिख के दे दिया, आप बताएं। अदरवाइज सर तो फिर सीधी डिसीजन ट्रेन चेंज करेंगे, नहीं, फिर सीधे जाएंगे फिर ना। सीधा जाएंगे क्योंकि वो उसका ट्रेन। अब आप में से 95% लोगों ने जो आपने हैंड रेस किए, यू फॉलोड ए यूटिलिटेरियन अप्रोच टू जस्टिस, कि गलत सही का तयन नंबर्स में करेंगे। काशिफ साहब वाज द डिसेंटिंग वॉइस हियर, उन्होंने बड़ा जबरदस्त नुक्ता पेश किया। काशिफ साहब की बात सर की तरफ। एक इजाज़त है जी। थोड़ा सा, क्योंकि सख्त हो गया लाइट। वो सरदार थे ना, उन्होंने कहा कि एक तरफ बारात थी और एक तरफ दो बंदे जा रहे थे, तो तूने बारात पे गाड़ी चला दी। उसने कहा मैं गया तो ਉਹਦੇ दो बंदियां दे मगर ही सी, वो बारात च वड़ गए, मैं ਉੱਥੇ वेरी गुड, जबरदस्त। तो अब मेरा आपसे अगला सवाल, अब आप अज्यूम करें जो जिन लोगों ने कहा था कि वो एक तरफ जाएंगे, मेरा अगला सवाल, अब मैं आपको नई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। पता चला कि ट्रेन का जो रेगुलर ट्रैक था वो ये, यानी रोजाना इस गांव, इस मोहल्ले के बच्चे बच्चे को पता है कि ट्रेन ने यहां से गुजरना है, एंड एवरीवन नोज कि ये तो रिडंडेंट है, ये तो यूज ही नहीं होता। अच्छा, ये साहब जो है ये जानते हुए कि चूंकि इधर से ट्रेन नहीं गुजरती, आराम से जाके सो गए हैं, और ये नहीं पिछले 10 साल से वो इधर सोते रहते हैं शाम को। ठीक, अब ये इंफॉर्मेशन आपको मिली, अब आप में से वो लोग जिनका पहले था कि इन 5 को बचाएंगे, कितने लोगों में से वो अपना डिसीजन चेंज करेंगे? और विल यू स्टिल, आप ट्रेन को अभी भी इस तरफ लेके जाएंगे? जो लोग डिसीजन चेंज करेंगे वो हाथ खड़े करें जी। फिलहाल इतनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। नहीं कर रहा है, आप अज्यूम करें। मैं लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। आप में से 95% लोगों ने कहा था कि वो ट्रेन को इधर ले जाएंगे, 5 लोगों को बचाएंगे। मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी बेसिकली कि ये तो ट्रैक था ही नहीं, इस बंदे की गलती नहीं है, इनकी गलती है, ये इनकी गलती है। इनको पता है कि ये ट्रेन का रेगुलर ट्रैक है, इसके बावजूद ये सोए हुए हैं। सो मैं एक मिनट, वो लोग जो पहले समझते थे कि ट्रेन को यहां से गुजारना चाहिए, 95% लोगों ने कहा, उनमें से कितने लोग अपना फैसला चेंज करेंगे? रेज योर हैंड, आप बताइए क्यों? राइट और रॉन्ग का मसला आ गया है, क्योंकि अब जो लोग 5 यहाँ पर हैं वो दे आर ऑन अ राइट पाथ, और वो जो जो 5 हैं ऑन अ रॉन्ग पाथ है, और जो एक है वो राइट पाथ पे। सो ये हसन साहब कह रहे हैं, अब मैं जरा आपकी लैंग्वेज में बात, ये कह रहे हैं कि अगर हम ट्रेन को इधर लेके जाएंगे तो वी आर कमिटिंग मर्डर, क्योंकि एक मासूम को आपने जानबूझ के डेलिबरेट चॉइस थी आपके पास, आपने मारा है। इन दिस केस इट विल बी काउंटेड एज एन एक्सीडेंट, दिस वोंट बी मर्डर। ये एक्सीडेंट होगा बट दिस विल बी मर्डर। अच्छा, आप में से मैं आऊंगा सबकी तरफ, उन 95% में से जिन्होंने कहा कि हम ट्रेन यहां लेके जाएंगे, ये जो मैंने इंफॉर्मेशन दी, इसके बाद भी जो ट्रेन को यहां से ही गुजारेंगे, कोई है ऐसे? आप बताएं। ये जो एक बंदा है उसका ये प्रिविलेज नहीं है कि वो ट्रेन की पटरी पर लेटे। ये व्हाई ही इज थिंकिंग लाइक सो दैट इट्स माय प्रिविलेज, इफ इट इज अ ट्रैक, इट ट्रैक इज मेंट फॉर। नहीं तो वो तो इन 5 का भी नहीं है, वो तो इनका भी नहीं है, नहीं वो तो, लेकिन वी हैव टू, प्रिविलेज तो इनका भी नहीं है, लेकिन उधर हमने लेसर लॉस की तरफ जाना। हाँ, लेकिन फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि भाई कम से कम उसको ये, वो तो है कि उसको ये पता है, यानी उसने एक जिम्मेदार शहरी का फिर भी मुजाहिरा किया इनके मुकाबले में। इनको पता है कि ट्रेन यहाँ से गुजरती है, उसके बावजूद सो गए। इसको पता है कि ट्रेन यहाँ से नहीं गुजरती, लेकिन फिर भी आप पे मर्डर का इल्जाम लगेगा कि और कमिटिंग अ डेलिबरेट एक्ट ऑफ मर्डर। मैं डिफेंस लूंगा, सैयद साहब जो है फैसला आपके खिलाफ देंगे। नहीं, मैं डिफेंस लूंगा कि ये तो ट्रैक था, इट वाज नॉट अ। अच्छा, मैं अब आपको एक नई इंफॉर्मेशन देता हूं। सो पहला, all of you were utilitarians to begin with,
जब मैंने आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन दी, मेजॉरिटी ऑफ यू चेंज योर डिसीजन, आप यूटिलिटेरियन से इगैलिटेरियंस बन गए। आपने इंडिविजुअल राइट्स की बात की कि भाई वो अगर उसको पता था कि ट्रेन यहाँ से नहीं गुजरती और वो उधर नींद सो रहा है और पिछले 10 साल से यहाँ ट्रेन नहीं गुजरी, अब ये इंडिविजुअल राइट की बेसिकली आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब यूटिलिटेरियन अप्रोच आपको ठीक नहीं लगती। इट्स नॉट अबाउट द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। आप लोगों की खुशी को उसमें नहीं तोल सकते। अब नई इंफॉर्मेशन है, दिस इज द इंटरेस्टिंग बिट। अब आप में से अक्सरियती लोगों ने फैसला किया है कि वो इधर से ट्रेन गुजारेंगे। व्हेन यू रियलाइज्ड कि इन 5 लोगों में, चूंकि ये इन्होंने सिविक सेंस का मुजाहरा नहीं किया, इनकी गलती है और ये एक्सीडेंट काउंट होगा, मर्डर नहीं होगा। पता चला कि जी इन 5 लोगों में एक इमरान खान साहब है। इमरान खान से मेरी मुराद कोई भी आपका जो भी पॉपुलर लीडर है, बाकी रियलिटीज वही है। या लेट मी चेंज इट फॉर यू, बाकी सिचुएशन वही है। आप अक्सरियत ने फैसला किया कि ट्रेन यहां से गुजारेंगे चूंकि ये गलती पर है, एंड ऑल ऑफ अ सडन अब आपने डिस्कवर कर लिया कि इन 5 लोगों में से 3 आपके कजन और रिश्तेदार हैं। सही बताया। अब जब आपके कजन और रिश्तेदार है, कितने लोग आप में से अपना फैसला दोबारा इस तरफ कर देंगे? इस बेचारे की तो मेरे ख्याल से नहीं जान छूटनी आज। आप में से वो लोग जिन्होंने पहले कहा कि ट्रेन यहां से गुजारेंगे, जब मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी अक्सरियत ने डिसीजन चेंज कर लिया। अब मैंने आपको न्यू इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई 3 आपके कजन हैं, आपके जो भी मजहबी, सियासी, कबाइली जिनको आप मानते हैं, उनमें से कोई बंदा इसमें लेटा हुआ है, तो आप में से दोबारा कितने लोग अपना डिसीजन इधर करेंगे? इस बेचारे की जान नहीं छोड़ेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू विल चेंज योर डिसीजन? रेज योर हैंड। ये आप समझे कि नामालूम अफराद दे रहे हैं। बताएं जरा। अच्छा, आप कह रहे हैं आप अक्सरियत लोग अपना डिसीजन चेंज नहीं करेंगे? जी प्लीज। हाँ, ये 5 आप सॉरी टू से समझे नशा करके इधर लेट गए मस्ती में। नहीं हमें नहीं पता, बट ये होश में ही नहीं है। जो भी इधर सोए हुए हैं और अभी उठ नहीं सकते, ना कोई उठा सकता है, मरना किसी ने है। इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए। ये नेक्स्ट वो यही है। लेकिन आप में से कितने लोग अपना फैसला चेंज करेंगे व्हेन रियलाइज कि आपका रिश्तेदार, आपका मजहबी, सियासी, कबाइली कोई पेशवा इधर इनमें से है? रिश्तेदारों पे तो नहीं करेंगे। हाँ, रिश्तेदारों पे तो नहीं करेंगे सर। ये कौन कह रहे हैं? आप मेरे एक और अर्ज है सर। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट। अब मुझे पता है आप सारे माशाल्लाह सीनियर जजेस है, प्लीज आप ऑर्डर देने के यूज्ड टू हो गए, लेकिन मुझे इन्होंने ऑर्डर दिया हुआ कि मैंने टाइम पे खत्म करना है। आप बताएं जरा। सर रिश्तेदारों को अगर पता चल जाए कि रिश्तेदार हैं तो फिर भी नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ एक आदमी है, यहाँ फिर भी फैसला चेंज नहीं करेंगे। नहीं, ये अब आप अच्छा चलें, आप समझे, आप चले, आप यूं समझे कि आप एक मिनट जज साहब, एक मिनट। आप किसी बीच पे हैं, कोई वो लाइफ गार्ड जो है वो आपके साथ है, वहां पे कोई क्राइसिस आता है, कोई शार्क आ गया, कोई तूफान आ गया, उधर लोग हैं, कोई 50 लोग हैं, उनमें से कोई 5-10 को आप बचा सकते हैं, बाकियों को नहीं। आप रैंडम लोगों को बचाएंगे, आप कहेंगे बूढ़े बच्चों को बचाऊंगा सब, फिर मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि उनमें से एक आपके वालिदा और भाई है, सबसे पहले किसको बचाएंगे? उन्हीं को बचाएंगे। यानी ये दिस इज इंस्टिंक्टिव। तो ये अगर आप कहेंगे कि इधर आपको जब पता चला कि रिश्तेदार और ये हैं, उसके बावजूद आप ट्रेन इधर घुमाएंगे, मैं मानने के लिए कोई ज्यादा तैयार नहीं हूं। खाकवानी साहब माइंड ना कीजिए, लेकिन मरना इस बेचारे नहीं है, मुझे लगता है। चले, अब
इन सब इंफॉर्मेशन से, अब मेरे पास 50 और सिनेरियोज हैं. मैं कहना क्या चाहता हूं इन एग्जाम्पल से, व्हाट आई वांट टू डेमोन्स्ट्रेट कि ये जो गलत सही जस्टिस, लीगलिस्टिक कॉन्सेप्शंस ऑफ जस्टिस, सही गलत का फैसला आप डिवाइड ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं कर सकते. आपको वो कॉन्टेक्चुअल, अब यही में अगर पता चले कि जी असल में तो इन बेचारों का कसूर भी नहीं है, ये तो मजदूर है, ये इनका वडेरा है, इस वडेरे ने अपने मजदूरों को नशा देके यहां पे बांध के इस पटरी पे लिटाया मारने के लिए, और ये खुद तमाशा देखने के लिए इधर बैठ गया कि मैं तमाशा देखूं, और इसी प्रोसेस में सो गया. अब तो डेफिनेटली आप सब इधर जाएंगे. ठीक, तो ये इससे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट ये करना चाह रहा हूं कि ये जो एब्सोल्यूट जस्टिस, सही गलत या एक अप्रोच टू जस्टिस, ऐसी कोई चीज नहीं है. आप जजेस बेंच की कुर्सी से नीचे उतर के अपनी आम जिंदगी में जो फैसले करते हैं वो इन फैक्टर्स पे करते हैं. आप अपनी आइडेंटिटी को भी देखते हैं, आप अपने ताल्लुकात को भी देखते हैं, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स को भी देखते हैं. एज जजेस इसका आपके लिए कि आप ये ट्रॉली प्रॉब्लम नंबर 1 हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि कोई एब्सोल्यूट जस्टिस, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता. कोई लीगलिस्टिक कंसेप्शंस ऑफ मेरिट, गलत सही जो है वो नेसेसरली फेयर और जस्ट नहीं है. थर्ड, ये आपको ये बात भी समझाने में हेल्प करता है. आप जरा आगे बढ़ते, मैं एक दो और आपको कुछ एक्सट्रीम एग्जांपल्स दे दूं ताकि आपको पता चले कि जस्टिस, ये एक्चुअल स्टोरी है. मेनोनेट एक शिप है, एक कश्ती थी 1884 में जो इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी. रास्ते में कश्ती तबाह हो गई. 4 लोग उनमें से बच गए. कश्ती तबाह हो गई, 4 लोग बच गए. 4 लोग जो बचे उनमें से एक 17 साल का लड़का, ये इसका नाम पार्कर है, बाकी शिप का कैप्टन है और 2-3 जो सीजन सीनियर लोग हैं. इनको एक छोटी सी कश्ती मिली जिसमें ये 4 लोग सफर कर रहे हैं. दिस इज एन एक्चुअल स्टोरी. ये 18-19 दिन के लिए दे केप्ट सेलिंग. खाना कुछ नहीं मिल रहा. एंड पे हालत ये आ गई कि इन्होंने फैसला करना था कि या तो हम सारे मर जाएं या यूटिलिटेरियन अप्रोच फॉलो करें, 3 को बचा लें, 1 को मार दें. तो शिप के कैप्टन ने फैसला किया कि पार्कर चूंकि ना इसके फैमिली है ना बच्चे हैं और बाकियों से ज्यादा बीमार भी है, तो कैप्टन ने पार्कर को ज़िबा किया और बाकी तीनों ने मिलके अगले चंद हफ्ते पार्कर का गोश्त खाया टू सर्वाइव. नाउ पहली बात तो ये इसमें हमें क्लियरली पता है कि पार्कर कोई खुदाई, कोई नेचुरल डेथ से नहीं मरा. पार्कर को मारा गया. अब 50 सिनेरियोज वही इधर बनते हैं कि ये जो कैनिबलिज्म है कि इंसान को, पहले तो सवाल ये कि ये लेट्स से पार्कर मरा हुआ इन्होंने उठाया, इंसान का गोश्त खाना इटसेल्फ इन हालात में फेयर था कि नहीं था. दूसरा सवाल, अगर इंसान का गोश्त खाना ही था, मजबूरी थी, फिर उसमें से लेट्स से अब मरा हुआ इंसान नहीं मिला, पार्कर को मारा, क्या पार्कर को ही मारने का फैसला ठीक था? क्या ये इंसाफ पे था? क्या ये मेरिट था? मेरिट इस केस में क्या है? एक मेरिट ये कि पार्कर की चूंकि फैमिली नहीं है, वो नहीं है, तो यूटिलिटेरियन अप्रोच कहती है कि कम लोगों को तकलीफ होगी. बट इसी अप्रोच, दूसरी अप्रोच ये कि भाई आप सब बूढ़े हैं, अपने कैरियर के एंड पर हैं, पार्कर लॉन्ग टर्म में सोसाइटी को ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा. सो जो लॉन्गर रिटर्न्स ऑफ सेविंग पार्कर है समाज के लिए वो ज्यादा है. पार्कर कल बड़ा होके कोई बड़ा सेलर बने, कोई साइंटिस्ट बने, तो उसकी कंट्रीब्यूशन तो ज्यादा होगी. आप तो अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं.
अच्छा, फिर सवाल ये, व्हाट इफ अगर पार्कर की रजामंदी से उसको मारा गया, पार्कर ने कंसेंट किया कि जी ठीक है, मैं चूंकि इन्होंने बताया, फिर क्वेश्चन ये है कि क्या ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट था? क्या पार्कर इस ज़हनी हालत में था कि 3 सीनियर बंदूक ने जो उसके माइंड में फीड किया, उसकी बुनियाद पे वो एक फेयर और बैलेंस्ड और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता था? अब हर जो नई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में शेयर कर रहा हूं, वो पिछले डिसीजन को नलिफाई कर रहा है। अच्छा, व्हाट इफ अगर इन्होंने लॉटरी से क्या होता कि ड्रॉ निकालते हैं हम में से किस को मारना है? व्हाट इफ जो कैप्टन साहब की लॉटरी निकली वो मुकर गए कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा भाई। सो इससे इन सब से मैं एक ही काम करने की कोशिश कर रहा हूं कि जस्टिस, सोशल रियलिटी, ये बहुत पेचीदा कॉन्सेप्ट है। इसलिए पहले तो बतौर इंसान हम अपने वट एवर सोशल, मॉरल, पॉलिटिकल बिलीफ्स हमारे हैं, हम उन पे अमल करें, लेकिन उसके लिए लड़ने, मरने, मारने पे ना आए। क्योंकि आपको एक घंटे में तो मैंने आपके 20 फैसले तब्दील करवा दिए, जिसका मतलब है अब अगर खुदा ना खास्ता इनमें से किसी आइडिया के लिए आपने ये जान दी या जान ली या लोगों से नफरत की या कोई ऐसे डिसीजंस दिए, तो जस्टिस, सो पहले मैं जानबूझ के, आप कहेंगे कि आपने ज्यादा कंफ्यूज कर दिया, मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं क्योंकि इससे आपका कलम मजीद एहतियात करेगा, एम्पथाइज करेगा। आपके जहन में क्या, उसकी बजाय ये 50 और फैक्टर्स को देखेगा। इसीलिए कहते हैं ना, जज पे ना क्रिटिसाइज करें, जजमेंट पे करें। इसीलिए हम जज को उसका वो हालात हैं जो उसने फैसला किया है, ये जो आजकल है कि जज को उसकी ज़ात नहीं पता, नहीं उसने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, जो फैसला किया है, जो जजमेंट उसकी गलत हो सकती है, वो खुद हो सकता है कि उस वक्त तो वो हक बजानिब था ना वो फैसला करने। इसीलिए ये प्रोवर्ब है कि फेयर इनफ, फेयर इनफ, ये आपकी बात को आगे बढ़ाया। जी प्लीज। इवन अदरवाइज सर, कलेक्शन ऑफ एविडेंस इज नॉट द वर्क ऑफ अ जज। कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो है वो एजेंसीज का काम है, और जो आपके सामने वो पेश करेंगे, जिस तरह आप अब मुख्तलिफ सिनेरियोज पेश किए हैं, तो जो सिनेरियो हमारे सामने आएगा उसके मुताबिक डिसीजन आना है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, कोई कंसेंसस नहीं है। पहले तो यही मैं कहना चाह रहा हूं, ये 4 स्कूल ऑफ थॉट्स है। लिबर्टेरियंस आज भी बहुत पॉपुलर है वेस्ट में, रिलेटिवली जो है वो इगैलिटेरियंस है। नहीं, मैंने आपको यूटिलिटेरियन, लिबर्टेरियन, इगैलिटेरियन, फोर्थ है कम्युनिटेरियन। कम्युनिटेरियन वो लोग हैं, ये लिबर्टेरियंस के अपोजिट है। कम्युनिटेरियंस कहते हैं कि जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो इज्तमाई हकूक के एक सर्कल में वैलिड हैं, ऑपरेट करते हैं। इंडिविजुअल राइट्स को सुप्रीमेसी या फोकियत हासिल नहीं है ओवर कलेक्टिव कम्युनिटी के राइट्स। सो फॉर द कम्युनिटेरियंस, कम्युनिटी इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी। सो कम्युनिटेरियंस क्या कहेंगे? कम्युनिटेरियंस कहेंगे कि भाई ये गे मैरिज, ये इस तरह की बातें नहीं, हमारे कुछ अकदार हैं, हमारे नॉर्म्स हैं, उसके अंदर रह के हमने करना है। लिबर्टेरियंस कहेंगे कि भाई आपने अकदार और रिवाज और इसके नाम पे तो पिछले 100 सालों से हमें जो है जकड़ के रखा हुआ है। तो ये इन दोनों का आर्गुमेंट है। दूसरे जो है आपका इगैलिटेरियन और यूटिलिटेरियन। अब इगैलिटेरियन जो है वो बड़े मजेदार लोग हैं, चले खैर, मेरे जहन में कोई मिसाल था, मैं भूल गया। अच्छा, ये तो मैंने आपको मिसाल दे दी। किसको? सॉरी, यूटिलिटेरियन तो ये है कि यूटिलिटेरियन डजंट केयर के हमारा यूनिट प्राइमरी जो है वो समाज है या फर्द है। यूटिलिटेरियन का कंसर्न सिर्फ नंबर से है कि हर वो पॉलिसी या काम जिसकी बेनिफिट मैक्सिमम लोगों को पहुंचे, दैट इज द राइट थिंग टू डू। लेकिन इसमें अक्सर जो दुनिया है
वो इस अप्रोच पे बाय एंड लार्ज एग्री करते हैं, वो इगैलिटेरियन है। इगैलिटेरियन और कम्युनिटेरियन में क्या फर्क है? अगेन इगैलिटेरियन जो है वो इगैलिटेरियन नंबर वन एक बैलेंस रखता है बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड कम्युनिटी राइट्स। दूसरा इगैलिटेरियन की सबसे मजेदार बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इगैलिटेरियन कहता है कि भाई मेरिट जो है वो सिर्फ जॉब के वक्त अप्लाई करते हुए नहीं शुरू होता है। इगैलिटेरियन कहता है कि जिंदगी का रेस शुरू करते वक्त से मेरिट का कॉन्सेप्ट लेना चाहिए, कि यानी लेवल प्लेइंग फील्ड, डिसएडवांटेजेस, प्रिविलेज, और जहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, ये इगैलिटेरियंस ही है जो अफर्मेटिव एक्शन, कोटा, बिस्प, अब बिस्प आप देखें मसलन बिस्प पे सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म जो आती है वो मिडिल क्लास से आ रही है, इलीट्स और मिडिल क्लास से। अच्छा भाई, मैंने सो मेरा गांव इट्स राइट ऑन द पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, आई वेंट देयर। एक मेरे गांव में बूढ़ी औरत बेवा, उससे मैंने एक दफा पूछा, मैं जब पाकिस्तान के किसी भी पॉलिसी का लिटमस टेस्ट करता हूं, मैं देखता हूं कि वो मेरे गांव तक पहुंचा है कि नहीं। अगर एनीथिंग मेरे गांव तक पहुंचा है, मेरा अपना रूल ऑफ थंब है कि ये अगर वो वहां तक पहुंच गया तो इसमें कुछ है, क्योंकि वहां पे 99% चीजें नहीं पहुंची हुई, बिस पहुंचा हुआ है। तो मैंने उस खातून से पूछा कि ये 2000, उस वक्त 1000 थे महीने के आपको मिलते हैं, इससे आपको क्या, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इन योर लाइफ? उसका जवाब सुने, बहुत रिमार्केबल। वो कहती है कि बेटा आप जैसे लोग, आप एक ईद दूसरे ईद पे शहर से आते हो, फिर आप गायब होते हो, आप मुझे 20,000 भी दे दो, मुझे ये ज्यादा कबूल है। मैंने कहा क्यों? फिर मैंने सोचा, ढूंढा, इस पे बेसिकली इकोनॉमिक में पूरी थ्योरी है। वो क्या? उसने कहा द वेरी फैक्ट कि मुझे 1,000 या 2,000 हर महीने के गारंटीड मिलते हैं, ये जो सुकून मुझे देता है कि मैं भूखा मरने से बचूंगी, इसको हम इकोनॉमिक्स में फिर मैंने देखा स्टेबल इनकम फ्लो का जो इंपैक्ट है वर्सेस अनस्टेबल इनकम फ्लो, कि इनकम की तादाद अपनी जगह, उसका साइज, लेकिन सर्टेनिटी एंड स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, कि जब आपको पता है कि आपको रिलायबल इनकम स्ट्रीम है, उसका जो साइकोलॉजिकल और सोशो इमोशनल इंपैक्ट है आप पे, वो बहुत ज्यादा है, वो पॉजिटिव है। इसके मुकाबले में अगर अनसर्टन, अनरिलायबल इनकम फ्लो है, बेशक 20-20 हजार हो, लेकिन आपको ये नहीं पता अगले महीने मिलेंगे कि नहीं, 4 महीने बाद कुछ होगा कि नहीं, वो उस गरीब आदमी की जिंदगी में, तो इसको इसलिए सेफ्टी नेट कहते हैं। सेफ्टी नेट, इतना सेफ्टी कि भूखा मरने से आपको तसल्ली है कि आप बच गए। अब ये मेरे और आप जैसा बंदा जिसने उस लेवल की गुर्बत नहीं देखी, वी कैन नॉट इमेजिन दिस। अगेन ये प्रिविलेज है। ये जो बिस्प के खिलाफ अक्सरियत बात करते हैं, आई नो वेल मीनिंग लोग बात करते हैं, और अपनी तरफ से वो ये आर्गुमेंट दे कि जी स्किल्स दे दें। वो भाई स्किल 70 साल में आपने दिए नहीं दिए? सर इसमें और तरह के भी क्रिटिसिज्म तो हो सकता है ना, मसलन ये एक वो है, ये डिस्ट्रिक्ट ज़कात प्रोग्राम भी हर ज़िले में चल रहा है। हाँ। तो क्या ये बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम जो है, क्या ये बेनज़ीर इनकम उनके घर से दिया जा रहा है? ये तो मुल्क दे रहा है, ये एक इंडिविजुअल के नाम पे क्यों चल रहा है? वो ऐसे पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो ये ज़कात प्रोग्राम जो चल रहा है तो उस पर ही पैसा दे दें। तारड़ साहब, यस तारड़ साहब शुक्रिया। देखें, इंडिविजुअल के नाम से चल रहा है, उस पर हम नहीं जाते, एंड अगेन टू बी फेयर देयर इज नथिंग इनहेरेंटली रॉन्ग विद इट। सियासी लोगों को आवाम मैंडेट देते हैं, मैंडेट इसी बात का देते हैं कि आप आके इसका क्रेडिट लें। ओ भाई, इधर तो लोग क्रेडिट लेके भी काम नहीं कर रहे हैं, यानी क्रेडिट लेके अपने नामों की तख्तियां लगा के भी काम नहीं कर रहे हैं। सो इस ये तो इशू ही नहीं कि अपना नाम और लगा दे, भाई उसने ही किया है ना, उसने किसी का नाम चुराया तो नहीं है, इशू ये नहीं है। अब ज़कात वाले या उस सिस्टम पे आते हैं। सो नंबर 1, पहला मैं थोड़ा सा जानबूझ के टीजर दे रहा हूं, प्रॉब्लमेटाइज कर रहा हूं कि लाशऊरी तौर पर जब हम बिस्प या इन उसके खिलाफ बात करते हैं, अक्सरियत जो जिन लोगों को मैंने देखा है सब अर्बन मिडिल क्लास या इलीट बैकग्राउंड के लोग हैं। अच्छा, बड़े कन्वीनियंटली कह देते हैं कि जी आप स्किल्स दे दें। बिस्प पता है क्यों कामयाब है?
थर्ड पार्टीज, दुनिया इसको पाकिस्तान के मोस्ट सक्सेसफुल एंटी पॉवर्टी इंटरवेंशन डिक्लेयर करती है। और इसमें भी थ्योरेटिकली कंसेंसस है कि स्किल्स देने वाला ऑप्शन ज्यादा सस्टेनेबल है। ये नहीं कि वो कोई थ्योरेटिकली गलत बात। प्रॉब्लम उसमें क्या है, अनफॉर्चुनेटली बतौर मुल्क हमारी वो कैपेसिटी नहीं है कि हम गरीबों को स्किल सिखा दे फिर इनको जॉब दिला दे। इस चक्कर में हमने 70 साल गरीबों को भूख से मारा है, उनको गरीब रखा है। वो स्किल्स प्रोग्राम, वो सारी चीजें भी मेरे और आप जैसे मिडिल क्लास लोग आके हाईजैक कर लेते हैं। वो एलीट कैप्चर, मिडिल क्लास कैप्चर, तो वो स्किल्स प्रोग्राम, उसकी डुएबिलिटी इट्स मच डिफिकल्ट देन सेट। ये इसलिए, अच्छा दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो अपने जगह जो आर्गुमेंट मैं देना चाह रहा हूं कि जस्टिस, ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस का कंपोनेंट है एम्पैथी, दिस इज एम्पैथी, कि भाई जिसको इंटेंडेड बेनिफिशियरी है उसके नजर से तो देखें कि ये इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। हर चीज को अपनी नजर से देखना जरूरी तो नहीं है। तो ये जिन गरीब लोगों के लिए है, उन गरीबों से पूछे कि डज इट मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइव्स और नॉट। हम सरकारी दफ्तर में बैठ के मेरे जैसे लोग पॉलिसियां बनाते हैं गरीबों के लिए भी, उन इलाकों के लिए जो कभी जिंदगी में देखे भी नहीं है, और फिर उनको हम डिफेंड भी करते हैं और उन पे तनकीद भी करते हैं। जी, बहस उधर चली गई। ये जो आपकी ओपिनियन में जो आपने 4 कैटेगरीज बताई हैं, इसमें फिर बेहतर कौन सी है? मैंने तो आपको बता दिया 2 बातें। नंबर 1, मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट में बताना भी नहीं चाहता। मैं पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ इनमें से भी कोई नहीं है। सर सॉरी, इसमें एक जो सारी आपने पहले बताया एब्सोल्यूट ट्रूथ कोई नहीं है जी। एग्जाम्पल आपने दी, एग्जाम्पल टू माई, सॉरी आप अगर बुरा लगे, नहीं कोई बात, एग्जाम्पल आपकी ठीक नहीं है क्योंकि आपने पीस मील आप फैक्ट्स दे रहे हैं। जब हम कोई डिसीजन करते हैं, किसी चीज़ को करते हैं, वो एक सारा सिनेरियो हमारे पास होता है। तो आप अगर पीस मील किसी तरह ये देंगे तो वो तो अनजस्टिफाइड है और बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं देखे मिसाल के लिए पूरे फैक्ट्स देने चौधरी साहब, यही तो बात है। ये आपकी असम्पशन है कि आपके पास सारे फैक्ट्स हैं। बिल्कुल भी आपके पास सारे फैक्ट्स नहीं होते। नहीं, आप ठीक है, नहीं, आप यही तो आई डू एग्री, ये रियल लाइफ में आप यही करते हैं। देखें, मगर हर चीज पे आप सेटल्ड प्रिंसिपल हो चुके वो हैं। देखें, ये तो मैं सिर्फ प्रिंसिपल्स की तरफ आपको लेके जा रहा हूं। पॉइंट में क्या कहना चाह रहा हूं इन एग्जांपल्स के थ्रू, इधर सिर्फ मैं आपको एक्सप्लिसिटली रियलाइज करवा रहा हूं कि आपकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट थी। इससे मैं पॉइंट ये कहना चाह रहा हूं, डेली लाइफ में आप रोजाना इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पे ही डिसीजंस करते हैं। सिर्फ यू डोंट नो, यू डोंट रियलाइज इट, आपको किसी ने कहा नहीं है ये। आज मैं आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल से एक्सप्लिसिटली जानबूझ के हैवी डोज दे के आपको जगा रहा हूं कि ये आप डेली लाइफ में भी यही करते हैं। आपके पास बिल्कुल भी कोई, आपको कैसे पता कि एक बंदे ने जो चोरी की उसकी इमोशनल हालत क्या है, उसके घर में उसके साथ क्या हो रहा है, वो किन हालात में वो इस नतीजे पे पहुंचा है? यू डोंट नो दैट। इस स्टेट की ये कैपेसिटी नहीं है कि इस तरह की मालूमात आप तक पहुंचाए। आप वर्बली या हाइपोथेटिकली ये तो ठीक हो सकता है, मगर जब हम मुआशरे में रहते हैं उसके लिए सेटल्ड लॉ है कि आपने गिवन फैक्ट्स में ये चीज़ चलना है, ये सेटल्ड प्रिंसिपल है। अगर आप ये तो सिर्फ एक तखयलाती बात तो दुरुस्त हो सकती है आपकी, मगर प्रैक्टिकली हर फील्ड के लिए सेटल्ड प्रिंसिपल है। हर जजमेंट के लिए, फैसले के लिए एक गिवन फैक्ट्स हैं, उस पर लॉ है। उसी तरह हम दूसरी जिंदगी में आ जाते हैं, वैसे हैं। ये देखें आप चौधरी साहब ने, एक मिनट, यानी कि जमीन गोल थी, पहले कुछ आया, फिर चपटी हो गई, ये हो गया, मगर उस इरा के लिए वो ही फैक्ट्स थे एक्सपेक्टेड। अनलेस एंड एक नया, यानी कि अगर वो थ्योरी आ जाए तो उसको आप वही एक्सेप्ट करेंगे सारी दुनिया। देखें, अब आपने काम की एक बात की है, ये बेसिकली चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि ये जो बातें आज हमने डिस्कस की है, गलत सही, the different approaches to justice, ये कह रहे हैं कि सेटल्ड, चूंकि हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है, हम उसी में ऑपरेट करते हैं। सो पहले मैं आज आपको ये कोई दावत नहीं देने आया हूं कि आप उनको डिसरिगार्ड करें, लेकिन मैं ये जरूर आपको रियलाइज करवाने आया हूं कि अभी भी लाशऊरी तौर पर आपको लगता है कि आप 100% उस फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपकी बहुत सारी शऊरी, लाशऊरी बायसेस, ख्यालात, प्रिविलेजेस
इन्फ्लुएंस करते हैं. सो मेरी आज की इस एफर्ट की कोशिश ये है कि आप उसी फ्रेमवर्क के अंदर रह के भी ज्यादा सेल्फ अवेयर, ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट, ज्यादा इन्वायरमेंट के अवेयर, और जो कंप्लेनेंट है या जो विक्टिम बन सकता है उनके साथ एम्पथाइज करके जो आप डिसीजन देंगे इसी फ्रेमवर्क के अंदर, दे विल बी फेयरर, दे विल बी मोर जस्ट. इसकी एक आखिरी मिसाल देके कंक्लूड करते हैं. आखिरी मिसाल ये, ट्रॉली प्रॉब्लम. फिर आप लोग कहेंगे कि ट्रॉली प्रॉब्लम से जान नहीं छूट रही. अब ये सारी जो हमने डिबेट की, अब मैंने एक लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको ये दे दी है कि आप में से यू डोंट नो, आपने फैसला अभी देना है, लेकिन एक शर्त है, आप लोग ही इन्हीं एक्टर्स में से होंगे. आप में से कोई इन 5 लोगों में से होगा, कोई इस एक आदमी में से होगा, कोई वो ड्राइवर होगा. बट नन ऑफ यू नोज कि कौन इनमें से ड्राइवर होगा, कौन 5 लोगों में होगा. ये बात हम लॉटरी के थ्रू डिसाइड करेंगे. मैं एक लॉटरी, एक लकी ड्रॉ होगा, और उस लकी ड्रॉ में कोई जो है कंडक्टर बन जाएगा, कोई इन 5 लोगों में से होगा. फिर बताया, लेकिन लकी ड्रॉ से पहले आपने मिलके फैसला करना है कि कंडक्टर को क्या करना चाहिए और सजा क्या होगी. बताएं जरा, कोई आप ये फैसला कर सकते हैं? करें ना. ये तो आप देखें, अब आपको जब अपनी आइडेंटिटी का आपको पता हो, दूसरों के बारे में फैसला देना तो बड़ा आसान है. अब जब आपको मैंने कह दिया कि, और जिंदगी यही है, जिंदगी क्या है, लॉटरी के थ्रू आप किसी बड़े घर में पैदा होते हैं, छोटे घर में पैदा होते हैं, गरीब घर में पैदा होते हैं. लाइटर नोट, यू आर एक्टिंग लाइक एन आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. नहीं, परसेप्शन आप चेंज कर दें. खाकवानी साहब, यही मैं इन सिनेरियोस के थ्रू मैं कोशिश कर रहा हूं. रियल लाइफ में लाशऊरी तौर पर यही होता है और हमें पता नहीं चलता. तो अब नाउ द चैलेंज इज कि आपने रूल्स ऑफ द गेम, जितने आपने फैसले किए थे वही है. द ओनली डिफरेंस इज कि मैंने अब आपको बता दिया कि ये लोग, कोई सरदार, कोई और नहीं, आप लोग ही हैं. लॉटरी के थ्रू डिसाइड होगा कि आप में से कोई 5 लोगों में से होगा, कोई एक होगा, कोई ट्रेन का कंडक्टर होगा. अब उस अकेले को मारेंगे. जी, ये कौन कह रहे हैं? जी इधर सर. चौधरी साहब. उधर से. जी आसिफ साहब. जो ड्रॉ करेगा ना, हम उसे मारेंगे, जो लकी ड्रॉ करेगा. ये सही हल है. इसके अलावा क्योंकि किसी के बचने का कोई इम्कान नहीं है. लेकिन ये इसको कहते हैं, तो इसी पे कंक्लूड करेंगे. मेरी अपनी, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं. मेरी और दुनिया के अक्सर फिलोसोफर्स की जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मोस्ट ऑफ देम दे आर इगैलिटेरियंस. इगैलिटेरियंस वो है, वो पैदाइशी डिसएडवांटेजेस को मद्देनजर रखते हुए मेरिट और गलत सही का फैसला करते हैं. अच्छा, इगैलिटेरियनिज्म का कंक्लूजन ये है, ये सबसे बड़ा 20th सेंचुरी का एक फिलोसोफर था, जॉन रॉल्स. सो जॉन रॉल्स वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स ऑफ द 20th सेंचुरी. जॉन रॉल्स ने एक एक्सपेरिमेंट कहा कि जस्टिस सही गलत का पता ऐसे चलेगा. आप देखें, अभी तक हम कितने आराम से फैसले दे रहे थे. वेल ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का पर्दा. जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये फैसले जब देते हैं, उनको इनको अपनी आइडेंटिटीज पता है. आइडेंटिटी ये पता है कि जी मैं जज साहब हूं, मेरा घर ये है, मुझे पक्की सरकारी नौकरी है, मुझे कुछ हो नहीं सकता, और ये जो ट्रॉली के हवाले से मैं फैसला दे रहा हूं, दिस इज इनकॉन्सिक्वेंशियल फॉर मी. मेरी जिंदगी के लिए कोई इसका अच्छा बुरा नतीजा नहीं है. चाहे 1 मरे, चाहे 5 मरे, चाहे कंडक्टर मर्डर केस में अंदर जाए, मेरी जिंदगी पे असर नहीं है. लेकिन इसलिए आप बड़े सिक्योर हो के एक अलग पोजीशन से. जॉन रॉल्स ये कहता है कि आप अज्यूम करें कि आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं पता. आप शहर में पैदा होंगे, आप अमीर घराने में पैदा होंगे, आप मजदूर पैदा होंगे, आप डीएचए में पैदा होंगे, आप ये 5 लोगों में से है, इनमें से है, या ये साहब है. फिर बैठ के आप पहले रूल्स डिसाइड करें कि सजा क्या होगी, तनख्वाहें क्या होगी, गलत सही का निजाम क्या होगा. जितने इंपॉर्टेंट पब्लिक पॉलिसी के क्वेश्चंस हैं, मिसाल के तौर पर मिनिमम वेज क्या होनी चाहिए. अगर मिनिमम वेज आपसे मैं फैसला ले लूं, आप सबको मिनिमम वेज पे इतनी डिपेंडेंसी नहीं आप दे देंगे. लेकिन फिर मैं आपको कहूं
کہ آپ امیجن کریں آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ آپ جج ہیں, آپ سیشن جج ہیں, دیر از ہائی لائکلیہڈ کہ آپ میں سے آدھے لوگ ول اینڈ اپ, ایک لاٹری ہم کریں گے اور آپ میں سے کچھ لوگ مزدور کی وہ آئیڈینٹی لیں گے. تو پھر آپ منیمم ویج کیا سیٹ کریں گے؟ پھر آپ چور کی سزا کیا رکھیں گے؟ پھر آپ حدود آرڈیننس کن حالات میں اپلائی کریں گے, کن میں نہیں کریں گے؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو, اور ریئل لائف میں اسی طرح لاٹری کے تھرو ہم سب کو اپنی آئیڈینٹیز اسائن ہوئی ہیں. ہماری جتنی آئیڈینٹیز ہیں ہم میں سے کسی نے چوز نہیں کی ہے. مسلمان, پاکستانی, مرد, پشتون, بلوچ, پنجابی, سندھی, لاہوری, اسلام آبادی, کراچی, دیز آر آل آئیڈینٹیز جو بائی چانس لاٹری میں آپ کو ملی ہے. اینڈ دیز آئیڈینٹیز ہیڈ implications for the rest of your life in a way that you don't even realize. So اسی کے ساتھ ہم conclude کرتے ہیں کہ understand your privilege, regulate it, empathize with others, and when you are giving your opinion on an issue of public importance, privilege check کریں, پوچھے اپنے آپ سے کہ آپ بول رہے ہیں یا آپ کا پریویلیج بول رہا ہے. اینڈ لاسٹلی, فیئر فیصلہ آپ تب دیں گے, ہر فیصلے, ہر ایکشن, ڈیسیجن سے پہلے, ناٹ اونلی ان یور پروفیشنل کیریئر, ان یور لائف, سوشل لائف میں, زندگی میں, کہ اگر اس کے جو ریسیونگ اینڈ پہ آپ ہوں گے تب بھی آپ یہی فیصلہ لکھیں گے, یہی ایکشن کریں گے کہ نہیں. ویل آف اگنورینس آپ کو آخری یہ امپتی, فیئرنس سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ لاٹری کے تھرو ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ منیمم آپ ڈیلی ویجر ہوں گے یا جج صاحب ہوں گے, تب جا کے دونوں کا مراد کا فیصلہ کرے کہ جج صاحب کی کیا مراد ہوں گی, ڈیلی ویجر کی کیا ہوں گی. کیا آپ جج صاحب ہوں گے یا کوئی غریب سوسائٹی کا کوئی کرمنل جو مجبوری ہے اس کے چوری کرے, کوئی کرائم کرے, آپ کو نہیں پتا, اس کی سزا پھر آپ کیا رکھیں گے. اس طرح سے اور بہت سارے بسپ, اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ قلعہ عبداللہ میں پاک افغان بارڈر پر ایک گاؤں میں ایک بیوہ پیدا ہوں گے, آپ کی زندگی میں کوئی نہیں ہے, بسپ از دی اونلی سپورٹ لائف لائن فار یو, پھر آپ بسپ کو پسند کریں گے, نہیں کریں گے, یا اس ملک میں ساری انڈسٹریز ایلیٹس کو ہی دلوائیں گے. تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا آپ کی پریویلیجز, آپ کی آئیڈینٹیٹیز سے تعلق ہے. لاشعوری طور پر اور شعوری طور پر سب کانشیسلی ہم سمجھنے لگے ہیں کہ ہم غلط صحیح کا جو معیار رکھے ہوئے ہیں وہ ہم نے کوئی اپنی جو میرٹ ہے یا لیگل انڈرسٹینڈنگ ہے اس پہ رکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. ایز لانگ ایز یو آر اویئر آف دیز, اور آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ نہ صرف اپنے پریویلیج کو سمجھیں بلکہ امپتائز کریں, اور ویل آف اگنورینس, ضرور اگنورینس, اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں اگنورینس کا پردہ, before you act or decide upon something. With these, I conclude this interactive session. بہت شکریہ آپ سب کا, and thank you for your patience and presence.